रोशनी हमारी किरदार है, उसकी ज़िंदगी की कहानी है। तो मैं चाहूँगा कि मैं रोशनी को पहले बुलाऊँ और रोशनी ही अपने परिवार और Good afternoon everyone, and thank you so much for coming. I would like to introduce my family and friends. सबसे पहले मेरे प्यारे नाना डॉक्टर अमर किशोर सिंह, मेरे बद्री नानू, मेरी मॉम डॉक्टर वसुंधरा सिंह, मेरे डैड डॉक्टर आनंद सिंह, मेरा भाई डॉक्टर रजत सिंह, and my friends and colleagues from London, Dr. Nikhil and Dr. Nitin. So that is my lovely family and my friends. Well, congratulations to the entire team. The promo looks fantastic. So now we are open to questions. The floor is now open to questions. दोस्तों, एक मिनट का मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बीच अमोल जी हैं। पहले दो शब्द अगर अमोल जी की तरफ से हो जाए, इसके बाद हम लोग एक्चुअली ये इस तरह की रिक्वेस्ट ये प्लान किया था कि लास्ट में आएगी आपके सवालों में जाने के बाद। नंदलेस उस समय जो मुझे कहना था वो लाइन्स मैंने रख ली हैं, तो वही मैं कहूँगा कि आपके सवालात और सवाल जवाब हम लोगों के ख़त्म होने के बाद आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू वेलकम यू टू आवर लिविंग रूम। वहाँ जाके हम लोग और आगे की बातचीत करेंगे। तब तक आपको जो अभी पूछना है वो आप पूछ लीजिए। अमोल जी, हाँ सर, आप बहुत साथ टेलीविजन पहले से भी जुड़े रहे हैं टीवी के ज़माने से। हाउ डू यू टेलीविजन करंटली नाउ एंड हाउ डू यू सी दिस शो? जी मैं जुड़ा हुआ हूँ टीवी से राइट द इनिशियल स्टेजेस when there was only Doordarshan and no other channel. From there till now, there has been a huge leap. There has been a tremendous progress. We have seen now, I mean, television as an industry by itself in our country. So having witnessed that from far and from within, I think it will suffice to say that I was very happy to be part of this when Sanjay approached me. I was very happy that a different kind of content was being introduced, and the channel like OK also was keen on doing something which is definitely different than run of the mill. So that's the reason why I thought of joining the gang, and that's why I'm here. And we're very fortunate you joined the gang.
Hi. बिल्कुल भी नहीं, ये पूर्ण रूप से मौलिक रचना है। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो इसका किसी भी सीरीज से कोई लेना देना नहीं। थैंक यू। Give my response to that question. I don't watch much of TV, but some of the Americans, I mean, by no stretch of imagination there is anything from that house का H भी यहाँ नहीं है. So that's a very, as not as part of the team, but as a TV watcher. This is my response. पूजा भाई, हेलो। वैसे हमने जितने सारे शोज देखे हैं कि बहुत सारी सीढ़ियों पे रोमांस होता है, लिफ्ट में रोमांस करते हैं डॉक्टर्स, बट आप इस रोशनी सीरियल में कहाँ पे रोमांस करते हुए हमें दिखे? Exactly. Thank you. Any other questions? Hello sir, I'm from CNN IBM and my question is for you, Amol sir. Yeah. So what is so special about this script that you thought of making a comeback with this show only? Foremost, I have a very strong allergy to this word comeback, because I don't think there is any kind of a comeback. I was an actor by accident, and that was probably much before at least half of you were born. So how that accident happened, etc., is now, I have said it so many times, so one need not go into that. But I chose to become a filmmaker, and therefore I stopped acting. But having stopped acting, I had never closed the shop, so to say. I had always said that if there is something interesting, something challenging, something different comes my way, I would be happy to do so. And that's precisely what happened here. Here is content which I liked immensely. The approach of the production team I liked very much, and whatever was told to me or whatever was promised to me, I am experiencing it, I am enjoying it here every day on set. This is probably one of the most non-filmy atmosphere that we all enjoy on sets every day. It is also the kind of horror stories that I had heard from my colleagues about the television scenario and particularly daily soaps. जिस तरह से shootings होती हैं, how people have to work around the clock and all kinds of things, though, which I was very scared and worried. So I was assured that nothing of that sort happens here, and which I have experienced, and I can vouch for that we are working nicely as professionals, we are enjoying our work, and जैसे यहाँ पहले कहा गया, I think to me at my age today and this stage of my career, it is extremely important that I feel like coming back next day and look forward to work. Which I am doing. The moment I stop doing it, I have told them already, forewarned them, that the moment I stop doing that, I will withdraw from that. Because I don't believe in working if I'm not enjoying that. Because
unless I enjoy what I am doing, I can't make you enjoy that. This is what I have always believed in, and this is what we are doing. I am having a ball here, absolutely, and we can talk about it in more details if you want, but let me not hog all the limelight and all the things. Please go ahead and ask other people too. Thank you. Well, thank you so much, and don't forget to visit. Well, before we go for the one-to-one interaction, one-to-one. आई थिंक आपके सवाल का परफेक्ट और एग्जैक्ट जवाब संजय जी दे पाएंगे, सो आई थिंक क्या आपने फिर से सवाल? किस तरह का शो है, किस तरह का कंसेप्ट है ये, एक नई उम्मीद? ये एक डॉक्टर लड़की की जर्नी है जो अपनी जर्नी में अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल लाइफ दोनों को डिस्कवर करती है। समझ गया? संजय जी, ये जो मेडिकल के ऊपर आधारित है, हॉस्पिटल के ऊपर, अभी इस स्टोरी से आपने जो ये लिखा हुआ है, इससे क्या अभी इस समय का प्रेजेंट टाइम में जो करप्शन हो रहा है हॉस्पिटल में इंडिया में, क्या इसको देखने के बाद कुछ डॉक्टर अपने अंदर कुछ मानवता लाएंगे? तो मुझे नहीं लगता किसी शो को देख के कोई अपने अंदर मानवता लाता है, बट हाँ देखिए, ये बहुत ही आसान है कहना कि डॉक्टर्स करप्ट हैं या हॉस्पिटल में करप्शन होता है। ये हर जगह करप्शन है, हर फील्ड में करप्शन है। वैसे हो सकता है इस फील्ड में भी करप्शन हो, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हमने वो बैलेंस दिखाने की कोशिश की, हमने दोनों चेहरों को दिखाने की कोशिश की है अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रोफेशन का फ़ायदा उठाते हैं गलत चीज़ के, और ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रोफेशन को एक दूसरे स्केल पे ले जाते हैं, जहाँ वो आप मानवता की सेवा की बात कर रहे हैं उस लेवल तक ले जाते हैं। प्रोमो उसमें दिखाया गया है कि आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड में शूट किया है। Sorry? It has been shot, if you talk about the promo, it has been shot somewhere out, I guess London. So, you know, how was the entire experience? Did you guys visit London for the shoot? Yes. Yeah. How was your experience with the team? we did go to London. We shot a lot of the show in London, and it was an amazing experience. जब आप एक रियल लोकेशन जहाँ की स्टोरी दिखाई गई है वहाँ जाकर शूट करते हो तो एक ऑथेंटिक फील आता है। So yes, it was amazing. So you think this show will set apart if you talk about other doctors-based shows? Yes, of course, it will. Yes. इसमें हमें क्या नया दिखेगा? I mean, जैसे कि हम देख सकते हैं कि संजीवनी जैसी एक सीरियल थी जिसमें डॉक्टर के रोल में देख सकते हैं, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग थी। तो इस सीरियल में हमें क्या नयापन दिखेगा? क्या बता सकते हैं? Watch this serial. इसको डॉक्टर्स को जब डॉक्टर्स के सीरियल्स बहुत सारे आ चुके हैं, हाँ, जैसे संजीवनी इसमें अच्छी बात बहुत सारे आ चुके हैं। I mean, for example, संजीवनी ये आई थी सीरियल। मुझे तो नहीं लगता बहुत सारे आ चुके हैं, बट आई मीन आई डोंट वॉच टीवी दैट मच, बट
हाँ, I mean basically the backdrop set you know around the hospital and medicine. हाँ, जितने आज तक मेडिकल या हॉस्पिटल बैकड्रॉप वाले शोज़ आए हैं उससे ये बहुत ही हटके हैं, क्योंकि ये सिर्फ हॉस्पिटल को बैकग्राउंड और या बैकड्रॉप में रखकर हम रोमांस या ड्रामा या पॉलिटिक्स नहीं दिखा रहे. दिस इज़ एक्चुअली अ शो वेयर वी एक्चुअली शो व्हाट गोज़ ऑन इन अ डॉक्टर्स लाइफ. डॉक्टर की रियल लाइफ में उनके प्रोफेशन वाइज, उनकी पर्सनल लाइफ वाइज, उनके रिलेशनशिप वाइज क्या जाता है उनकी स्ट्रगल्स में, हर चीज़ में, वो एक्चुअली दिखाने की कोशिश की. मुझे एक चीज़ और भी लगती है मुझे कि जो मुझे अच्छी लगी इस शो में कि अवेयरनेस अबाउट मेडिसिन, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, ये हमारे देश में बहुत ही कम है, जो और कई गुना ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा हम सबको लगता है. दिस इज़ अ शो विच विल डू दैट, विच विल फिल दैट गैप, के एक रेजिंग द अवेयरनेस नॉट ओनली अबाउट मेडिकल प्रोफेशन बट ऑल्सो अबाउट हेल्थ एंड अबाउट हेल्थ ऑफ अ कॉमन मैन. उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, क्या खामियां हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा हो रहा है, ये सब चीज़ें इस शो में अच्छी तरह से विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड एकदम रियलिस्टिक वे में दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस एज आई सेड I decided to be a part of this show. अमोल जी, काफ़ी दिनों के बाद आप एक शो पे दिखाई देने वाले हैं. सालों के बाद. तो किस तरह से ये चेंज एज इन क्या चल रहा था, आपको करना था, शोज़ आप ट्राई कर रहे थे या फिल्मों के वक्त कुछ ऐसा हो रहा था, प्लीज़ कुछ बताइए. मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी ये करना है इसलिए ये ट्राई करूं ऐसा कभी किया नहीं. तो टीवी शो के लिए मैं कोई ट्राई तो कर नहीं रहा था. इनफैक्ट एज आपने बड़ी अच्छी बात की कि इतने सालों बाद आ गए. आई प्रॉब्ली स्टॉप्ड एक्टिंग व्हेन यू वर नॉट इवन बॉर्न. तो मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ. उस तरह की अच्छी चीज़ जो मैंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ हो जो करने के लिए मन करता हो, जो कहने के लिए एक अच्छा लगता है और कल सुबह आके काम करने का जी करता है. ऐसी चीज़ जब सामने आती है तो ना करने का कोई मतलब ही नहीं होता. तो ऐसी चीज़ ये संजय लेके आए और मुझे अच्छा लगा कि और भी कोई आदमी एक हट के अलग से कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा है टेलीविज़न पे, और वो भी लाइव होके उनको फुल सपोर्ट कर रही है. उनको कह रही है कि हाँ, आप घिसा पीटा शो मत कीजिए, रोमांटिक स्टोरी मत कीजिए, सास बहू वाली कहानी मत बताइए, आप कुछ अलग बताइए. तो ये कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी इनका साथ देना चाहिए और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ. जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. अच्छी तरह से इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, इन नॉन फिल्मी वे, विदाउट अननेसेसरीली टॉम-टॉमिंग अबाउट इट. हम लोग प्यार से काम कर रहे हैं और मुझे कल फिर आके काम करना है, ये आज भी लगता है कि हाँ, मुझे कल आना है. बिकॉज देर इज़ समथिंग मोर दैट वी कैन डू एंड समथिंग नाइस. एंड ऑफ द डे एक अच्छा काम करके वापस जाने का सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो ये सब मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ. जब ये बंद हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि थैंक यू सो मच, मुझे अब नहीं करना है, मैं वापस जाऊँगा. तो और टीवी पे तो ये बड़ा आसान है ना, उसको मार दीजिए, उसको या दूसरे एक्टर को लाके खड़ा कर दीजिए. आप लोग कभी क्वेश्चन करते नहीं. ये चीज़ें टीवी पे जब होती हैं कि एक कैरेक्टर को सडनली मार दिया, या ये कैरेक्टर आज से ये नहीं है, दूसरा ही एक्टर है कि वो कैरेक्टर कर रहा है. आप लोगों ने कभी इसका सवाल उठाया नहीं है. आप लोगों ने चुपचाप
ये सब सह लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वैसे ही मैं भी चला जाऊंगा, तो आप लोग सह लेंगे। थैंक यू सो मच। तो एज अ फिल्म मेकर हम अमोल पालेकर को फिल्म मेकर ऐसा किसी देख पाएंगे डायरेक्ट करते हुए, या कोई हिंदी फिल्म या एनी मराठी फिल्म उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ है? फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ। आई एम अ वेरी यू कैन से ओल्ड फैशन्ड, और क्या बोलें उसको, घोड़े को ये लगाते हैं, हाँ, हाँ, एक समय में एक ही चीज़ करता हूँ। मैंने कभी फिल्में भी इस तरह नहीं की और न करने की इच्छा थी। कर पाया मैं, जो मैं करना चाहता था, जिस तरह से करना चाहता था वही मैं करता आया हूँ। ये भी उसी तरह से कर रहा हूँ कि वन थिंग एट अ टाइम मैं ये कर रहा हूँ। ये ख़त्म होने के बाद फिर सोचूंगा और क्या करना है या नहीं करना है, कब करना है, ये सब बाद में सोचेंगे। अब तो आई एम डूइंग दिस एंड आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। चलिए सर, थैंक यू सो मच।